Hey guys, what's up? This is me Nikita Mehra and you're on my channel which is Nikki Nogat, and today's video is going to be like very informative for the people जो लोग निफ्ट में आने का सोच रहे हैं या फिर they gave the entrance or maybe वो coming years में try करने वाले हैं निफ्ट entrance के लिए. So moving on to the very first thing, which is the girls to the boys ratio. ये काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हैं कि लड़के कितने होते हैं लड़कियाँ कितनी होती हैं. तो बेसिकली द रेशियो इज़ लाइक 70% गर्ल्स एंड 30% बॉयज़, बिकॉज आई डोंट नो वाई. बी डेस में तो लड़कियाँ बहुत होती हैं. बी एफ टेक में से पहले में था कि लड़के होते हैं, बट हमारे बैच में लाइक दे आर 36 पीपल, सो आउट ऑफ 6 or 7 आर बॉयज़ और लाइक 9 or something. So 70-30 से भी कम रेशियो हुआ. So this is the reality and I don't know why this is, but yeah, it is what it is. Moving on to the next question कि निफ्ट में सब कुछ ऐसे ब्लिंग ब्लिंग होता है या फिर there is hard work as well. So everyone says निफ्ट is easy, निफ्ट is really chill pill, कुछ काम नहीं करना पड़ता, सब आसानी से हो जाता है. But the truth is yes, I would say कि obviously engineering and medical से तो obviously NIFT is, NIFT is really different. It's like uncomparable with any of the courses according to me. But the thing is we have a lot of practical things and we have a lot of brainstorming वाली चीज़ें, like we explore a lot. Plus the BDS people get ready to work रात भर जग जग के, because many people in NIFT, yes, they do have sleepless nights on like the assignment days or like jury days, because juries are like continuous juries in NIFT. Like you will not even get a single day for the preparation, and this is like going to be the very hectic part of your life. Juries, NIFT juries are a trauma to some and an advantage to the other people. So for me, jury part is okay, like it's good for me, because I think in jury you get the proper opportunity to prove yourself by your communication skills, by your work, and by portraying your idea and conveying your idea from तुम्हारे अंदर से to the faculty, and which results in बहुत अच्छे marks. So जिनके इंटरनल्स में अच्छे नहीं आते जूरी बचा लेती हैं एंड में, which is really really good thing. तो दोनों डिपार्टमेंट्स के अगर मैं काम कंपेयर करूँ, सो हेयर इज़ बी एफ टेक एंड हेयर इज़ बी डेस. सो बी डेस में यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ लर्निंग डायरीज इन द फर्स्ट ईयर. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द A4 साइज लर्निंग डायरीज, मेक इट क्रिएटिव, कट एंड पेस्ट एंड ऑल दैट. मूड बोर्ड्स तो बहुत ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, मैंने खुद बनाए थे. आई वॉज इन बी एफ टेक बट स्टिल आई हैव टू मेक मूड बोर्ड्स बिकॉज वी हैव सिमिलर सॉर्ट ऑफ सब्जेक्ट्स बट नॉट सेम एज बी डेस पीपल. बट हम लोगों को इतना आर्ट एंड क्राफ्ट वाला काम नहीं होता है. सो बी डेस को बेसिकली रिसर्च वर्क होता है. बी डेस में लाइक फर्स्ट ईयर में वही कराते हैं जो आप लोग एंट्रेंसेस में प्रिपेयर करते हैं. सो मैनी ऑफ द पीपल हु वर इन कोचिंग, मतलब निफ्ट में आने से पहले, सो दे वर सेइंग कि ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं यार, हम वापस क्यों करेंगे. बट द पीपल जो लोग नहीं थे किसी भी कोचिंग में, तो उनको ऐसे एक प्रैक्टिस टाइप हो जाती है फर्स्ट ईयर में. एंड टॉकिंग अबाउट बी एफ टेक नाइट नाउ, तो बी एफ टेक मैंने किया है, सो आई नो. सो फर्स्ट ईयर हमारा टोटली डिफरेंट होता है. लाइक किसी डिपार्टमेंट को भी ड्रेपिंग नहीं सिखाते फर्स्ट ईयर में, बट बी एफ टेक का लाइक सब्जेक्ट होता है पूरा ड्रेपिंग का. एंड इन द सेकेंड सेम वी ऑल्सो गेट टू स्टिच. मतलब बी एफ टेक इज़ लाइक सुपर ऐसे तेज़ इस मामले में कि बी डेस में फर्स्ट ईयर में सिर्फ ड्राइंग, स्केचिंग, एलडीज, मूड बोर्ड्स होता है, बट इन बी एफ टेक यू गेट टू स्टिच. बी एफ टेक में you have to stitch, you have to drape in the first year, like in the first and the second semesters. It's really good. You have to make presentations, you have theoretical classes. So yes, breaking one another myth over here कि we do have written exams guys. Like first year में congratulations to all the BDS people, you are not going to have any of the written exams, but yes, BF Tech you are going to give 2 written exams, which will be of one is fabric science and the another one will be EOT. So yeah, you have to give written exams, उसमें पास होना पड़ता है, 40 मार्क्स का पेपर होता है, उसके लिए पढ़ना पड़ता है. So yes, this was about the subjects and the little bit of the curriculum and how it's different from each other. Yes, another tip which I would like to give to both the departments, BF Tech and BDES वाले students को, कि see, you
will be entering the college which will be full of the people who have like अंदर से talent निकलता हुआ सबके अंदर से, because NIFT is not for everyone basically. So जो भी NIFT में आता है they are like full of skills, especially in BDES भाई लोगों को बहुत चीज़ें आती हैं, like बहुत ज़्यादा. So नेवर फील ऐसे अपने आप को कम कि हमें नहीं आता, एंड अगर आता है तो ज़्यादा उड़ना भी नहीं है हवा में कि ओ मुझे सब कुछ आता है करके. Because I think there's learning at each and every point of view, like you can learn things from each other like ऐसे daily basis पे. So because and the one act which is of not quitting and doing the hard work like at the difficult times of your life will make you stay and will make you ऐसे satisfied खुद से भी कि यार हमने quit नहीं किया. And yeah, the another thing is कि किसी को कभी copy मत करना, like in your ideas, in your ideations or the things which you do, because किसी को अगर हम कॉपी करते हैं ना, so the thing happens is कि तुम्हारा और उसका फिर सेम हो जाएगा, so that doesn't make you unique. ठीक है, तुम लोग सेम हो सकते हो बहुत सारे लोग, बट यू विल नॉट बी यूनिक. सो इफ़ यू वांट टू बी यूनिक, सो प्लीज़ 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 नेवर कॉपी एनीवन, भले उसका कितना भी अच्छा लग रहा होगा. टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट पर्सन या फिर उसके काम से, बट नेवर एवर कॉपी एनीवन, बिकॉज टीचर्स गेट टू नो. एंड प्लस ये जितने साइट्स हैं, Pinterest, AI निकल गए हैं आजकल, सो पीपल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट थिंग्स, बट टीचर्स को पता चल जाता है. सो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर इमेज कि भाई ये लड़की तो ऐसे कॉपी करती है, फिर ये लड़की तो भाई ऐसे AI से जनरेट करके Pinterest से निकाल के सब ऐसे कॉपी पेस्ट कर देती है. बट द थिंग इज़, इफ़ यू वांट योर वर्क टू बी वैल्यूड, इफ़ यू वांट कि तुम में लोग वैल्यू करें, सो मेक योर सेल्फ यूनिक एंड नेवर एवर कॉपी एनी वन, एंड डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी अदर पर्सन, बिकॉज आई थिंक कि सबकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, सबका ब्रॉटअप बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होता है. एवरीथिंग, सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ईच पर्सन इज़ रियली रियली डिफरेंट. सो तुम आउटपुट के बेसिस पे दो लोगों को कंपेयर नहीं कर सकते. So yeah, that I would say never compare yourself with any other person. Now talking about the faculties over here. So this is a very controversial topic, and yes, I would say कि never ever mess with any of the faculty, because फिर क्या होगा, इमेज ख़राब होती है, नंबर नहीं मिलते. ठीक है. एंड मैं बहुत मार्क्स इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज एट दी एंड जब SGPA निकलेगी तो मार्क्स की बात उठती है. सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि मत करना, किसी भी फैकल्टी की नज़र में मत आना, एटलीस्ट इन द फर्स्ट ईयर, बिकॉज फर्स्ट ईयर के टीचर्स एंड तक पढ़ाएंगे. बट हाँ, थोड़ा बहुत ऐसे हंसी मजाक चलता है. द NIFT फैकल्टीज़ आर रियली चिल, लाइक रियली चिल, कोई स्ट्रिक्ट नहीं है. Yes, BFT faculties are little bit strict, but if you do their work, like if you will be in nice terms with them, they'll be nice with you. But yes, BDES faculties are much more open and they're very 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 ऐसे normal and काफ़ी chill पिल हैं वो लोग. Plus one more thing, their knowledge. Like guys, their knowledge is सबसे अच्छी, मतलब they know everything about textile industry, about the connections, about the history of fashion, about everything. मतलब काफ़ी ज़्यादा knowledgeable people हैं जो इंडस्ट्री में इतने साल काम करके आ चुके हैं. आधे ज़्यादा फैकल्टीज़ तो निफ्टियंस ही हैं, मतलब NIFT गांधीनगर, NIFT हैदराबाद, NIFT दिल्ली, NIFT मुंबई ऐसे ही निकल के वहीं पर टीचर्स हो गए. बट दे हैव वर्कड इन सच ग्रेट कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज़ कि अब उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है. बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनसे कितना एक्सट्रैक्ट कर पाते हो. बट दे आर रियली हेल्पिंग, दे आर रियली गुड. लाइक ऐसे अच्छे टीचर्स हैं सारे के सारे जो भी टीचर्स हैं. एंड इफ़ द वर्ड कॉलेज कम्स इन योर माइंड, रैगिंग कम्स विद इट. सो NIFT में कोई रैगिंग नहीं होती. NIFT इज़ सच अ लवली कैंपस. मतलब मैं कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. एंड येस, NIFT इज़ सच एन एक्सेप्टिंग कॉलेज. लाइक इफ़ आई से एक्सेप्टिंग, इट मीन्स कि अगर कोई लड़का हील्स पहन के आ रहा है, सो दैट पर्सन इज़ एक्सेप्टेड, एंड विच शुड बी, लाइक इट शुड बी एक्सेप्टेड. बट द थिंग इज़ कि कोई कुछ नहीं बोलता. मतलब तुम किसी को किसी से पड़ी नहीं है, मतलब तुम्हें जो करना है तुम करो, तुम्हें जो कपड़े पहनने हैं तुम पहनो, तुम्हें शॉर्ट्स पहनने हैं, तुम्हें शॉर्ट्स के नीचे
कुछ भी पहनना है, तुम्हें लहंगे के नीचे शूज़ पहनने हैं, स्नीकर्स पहनने हैं, डू वट एवर यू लाइक नो बडी इज़ बॉदर्ड अबाउट यू. दिस इज़ अ रियली गुड थिंग. नो बडी विल एवर जज यू. लाइक इफ दे विल, दे नॉट कमेंटेड ऑन योर फेस, ठीक है, दे bitch about it in their own group, but तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा. मतलब you will enjoy whatever you do in everyday's life in NIFT, because I have seen many of the people, मतलब you can wear the boldest makeup ever in the college and you can sit in the class and yes, you are allowed to do it, because NIFT is like that. NIFT is all about expressing yourself. If you want to express yourself as any of the following, you can do it. Talking about the fest which happens in NIFT, like they are super cool. Like they are super cool if I say. तो फर्स्ट ईयर में जब आओगे ना, so be prepared for it. Like सब अपने साथ लेके आना, मैं तो बोलती हूँ. Like मुझे नहीं पता था, वरना मैं सब कुछ ऐसे लेके आती थी बांध के. What we think is extra in our daily life, it's normal in NIFT. Like it's very basic and low in NIFT. मतलब there would be many different days. Like once you enter the college, right, after counseling process and all that, orientation program होता है 3-4 दिन का. उसके बाद फिर फ्रेशर्स से पहले, मतलब जो फ्रेशर्स का वीक होता है, तो उसमें हर दिन डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रोग्राम होता है. मतलब हर दिन डिफरेंट डे होता है. मतलब क्लास भी अटेंड करो. क्लास इज़ बाय द वे इज़ फ्रॉम 9:30 to 12:30, फिर ब्रेक 1 घंटे का, देन 12:30 to 5:30. उसके बाद 5:30 के बाद प्रोग्राम शुरू हो जाता है. लाइक 5:30 to 7-8:30 चलता है. एंड एवरी प्रोग्राम हैज़ अ रूल कि एंड में डीजे नाइट ज़रूर होती है. भले वो गाना बहुत गंदे बजाते हैं, बट स्टिल इट्स वर्थ इट, बिकॉज डीजे नाइट किसको नहीं पसंद. तो यू विल हैव लाइक बहुत अच्छे डेज. तो मैं बता देती हूँ. नो बैकपैक डे, ठीक है, एथनिक डे होता है. उसके बाद मॉडलिंग का भी कुछ होता है, रनवे भी कुछ होता है. देर आर मैनी डिफरेंट डेज. देर आर डेज लाइक जिसमें यू हैव टू लाइक हेयर स्टाइल डिफरेंट करके आना था सबको. बॉलीवुड डे हुआ था अभी रिसेंटली. सो ब्रिंग द मैक्सिमम थिंग्स you have, like extra out of the box things, because you can use it over here. एथनिक जितना है सब लेके आओ. बाकी तो शॉपिंग तो करोगे, तो उसके लिए मैं एक दूसरी वीडियो भी डालूंगी. That was it for today's video. Hope you guys enjoyed it, and if you have certain more questions, do comment it in the comment box down below, and yes, I'll do reply to all of them. And yeah, till then, bye and thanks for watching, and do subscribe to my channel, guys. And if you want to see the hostel tour and the college tour, so yes, I'll be putting it soon. So bye and thanks for watching.